डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपने गॉस लॉ के एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिए थे। सिक्स्थ एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली सीट वो पढ़ लिया था। और आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे फोर्स एक्ट ऑन चार्ज्ड सरफेस। फोर्स एक्ट ऑन चार्ज्ड सरफेस, ये क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में आया था, इसलिए टॉपिक को बड़े ध्यान से अपने को समझना है। फोर्स एक्ट ऑन चार्ज्ड सरफेस, फोर्स एक्ट ऑन चार्ज्ड सरफेस, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2018, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2018। The charge given to the conductor is uniformly distributed on its entire surface. Charge plus Q given to the conductor is uniformly distributed on its entire surface. Let us consider a spherical conductor of radius capital R. The charge present or per unit area or surface charge density is sigma. Charge present on per unit area is sigma, which is known as surface charge density. Okay. The each segment or each element of charged surface is repulsive by another surface. Therefore, resultant force act on charged surface is perpendicularly outward. Perpendicularly outward. We take small element area AB. We take small element area AB, which surface is ds vector, and remaining surface ACB. Remaining surface ACB. We take 2 points P and Q. P and Q outside and inside to the spherical conductor and symmetric to the surface, small surface area AB. Small surface area AB. Symmetric means क्या है? जो डिस्टेंस P की AB से है वही डिस्टेंस Q की AB से है. It means P and Q are situated at same distance from AB. Situated at same distance from AB. और इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है? ds वेक्टर है. इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P and Q कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टू इलेक्ट्रिक फील्ड. One is electric field produced by charge present on small element area AB, which is E1 vector. और E1 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू AB. परपेंडिकुलर टू AB. इस पॉइंट के ऊपर भी E1 की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB हो गया. ये E1 वेक्टर आ गया. और second part electric field produced by remaining part of charge surface ACB. ACB जो पार्ट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर होगा और पॉइंट P पर E2 वेक्टर की डायरेक्शन भी अलोंग E1 वेक्टर होगी. इन डायग्राम इट इज क्लियर E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन. देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर सम ऑफ E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर. ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया E वेक्टर. ओके. और पॉइंट Q पर जो रिमेनिंग पार्ट ACB है, ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट ACB इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर, E2 वेक्टर उसकी डायरेक्शन ये आ गई.
at point Q, it is clear from diagram E1 vector and E2 vector are anti-parallel to each other or opposite to each other. We know that electric field inside the conductor is 0. Electric field inside the conductor is 0. We study earlier topics already. Now electric field near to the points of charge surface E equal to EP, vector equal to E1 vector plus E2 vector equal to सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप. ईपी वेक्टर की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस. वेयर इक्वेशन फर्स्ट, वेयर एन कैप यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर to the charged surface, perpendicular to the charged surface. ओके, एन कैप की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस, ईपी वेक्टर की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस. इट मींस ईपी वेक्टर एंड एन कैप आर इन सेम डायरेक्शन. ओके, E1 vector and E2 vector are in same direction as shown in figure. Therefore resultant magnitude of resultant electric field at point P, magnitude of resultant electric field at point P equal to E equal to E1 plus E2. EP equal to E1 plus E2 equal to sigma by epsilon naught. This is equation second. The resultant electric field at point Q is vector sum of E1 vector and E2 vector. The resultant electric field at point Q is EQ vector equal to E1 vector plus E2 vector, vector sum of E1 vector and E2 vector. We know that electric field inside the conductor EQ vector equal to 0. Now E1 vector plus E2 vector equal to 0. E1 vector equal to minus E2 vector. It means E1 vector equal to minus E2 vector. It means both electric field are equal in magnitude but opposite in direction. Both electric field are equal in magnitude but opposite in direction as shown in figure. Or this equation also shows, this is equation third. मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए E1 इक्वल टू क्या होगा E2. बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल मैग्नीट्यूड, E1 इक्वल टू E2. ये इक्वेशन थर्ड. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, from equation second and third we get E1 equal to E2. तो E1 प्लस E2 की वैल्यू भी किसके इक्वल, E1 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. E1 प्लस E1 2E1 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और E1 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E2. दिस इज इक्वेशन फोर्थ. ओके, E1 और E2 2 एप्सिलॉन नॉट.
E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ गई। ओके, द चार्ज प्रेजेंट ऑन स्मॉल एलिमेंट एरिया AB इज द चार्ज present on small element area is dq इक्वल टू स्मॉल एलिमेंट एरिया पर यूनिट एरिया पर चार्ज क्या है सिग्मा, और स्मॉल एलिमेंट एरिया है उसकी वैल्यू क्या है ds, पर यूनिट पर सिग्मा, तो ds एरिया पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू ds। दिस इज इक्वेशन 5th। ओके, दिस चार्ज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर रिमेनिंग पार्ट ऑफ ACB, स्पेयर का जो रिमेनिंग पार्ट ACB है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ACB इज E2 वेक्टर, और E2 वेक्टर में कौन प्रेजेंट होगा चार्ज dq प्रेजेंट होगा। इट मीन्स फोर्स एक्ट ऑन चार्ज dq इज, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको चार्ज गिवन है, इसका मतलब फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स का जो फॉर्मूला होगा फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चार्ज फोर्स हो गया dF, चार्ज क्या है स्मॉल एलिमेंट एरिया पर dq, dq की वैल्यू क्या है सिग्मा इंटू ds, तो dq पुट किया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में है स्वयं ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ACB विच इज E2 वेक्टर, तो इंटू E2 वेक्टर, E2 आ गया। DF इक्वल टू DQ की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू ds, और E2 की वैल्यू अपने पास ये इक्वेशन नंबर 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds, इक्वेशन 6th। ओके, इक्वेशन 6th। वी नाउ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू चार्ज सरफेस E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, तो सिग्मा इक्वल टू E गुणा एप्सिलॉन नॉट, E मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, E मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर DF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अपना क्या पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E होल स्क्वायर इंटू ds इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E का स्क्वायर आएगा ऊपर, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ds। दिस इज इक्वेशन 7th, दिस इज इक्वेशन 7th। फोर्स एक्सर्टेड ऑन एंटायर सरफेस, फोर्स exerted on entire surface of charged conductor, entire surface of
चार्ज कंडक्टर। ओके, अपन इक्वेशन 7th और 6th का क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, df इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds। df का इंटीग्रेशन क्या होगा, f होगा। ओके, f इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ds, और दिस इज इक्वेशन 8th। ओके, ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन एंटायर सरफेस आ गया। नाउ वी नो दैट फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ चार्ज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल प्रेशर। इलेक्ट्रिकल प्रेशर का फिर फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। The force act on per unit area of charged surface is known as electrical surface, और electrical pressure equal to force divided by area, force divided by area। इलेक्ट्रिकल प्रेशर इलेक्ट्रिकल प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। प्रेशर का सिंबल P, फोर्स एक्ट ऑन स्मॉल एलिमेंट df, एरिया ds, df का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds डिवाइडेड बाई ds, यहाँ ds से ds कैंसिल, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ds डिवाइडेड बाई ds, ds से ds कैंसिल, तो P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इक्वेशन कितनी, 9th। ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर आ गया। ओके, अब एक क्वेश्चन है वो अपन क्वेश्चन करेंगे। हाँ, द एरिया ऑफ मेटल प्लेट न्यूमेरिकल है।
numerical question. The area of metal plate 10 raised to minus 2 meter square. Area of metal plate is 10 raised to minus 2 meter square. Okay, it is charged with 10 microcoulomb. It is charged with 10 microcoulomb. Calculate electric field intensity at close point to the charged metallic sheet. It is charged with 10 microcoulomb. Calculate electric field intensity at close points to the metal plate. We know that all metals are good conductor. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है नियर पॉइंट्स पर. आंसर चार्ज एरिया दे रखा है गिवन. एरिया ए इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट क्या है? चार्ज Q इक्वल टू 10 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रो इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 6. इट मीन्स Q इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 कुलाम 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 कुलाम. ओके, ये चार्ज की वैल्यू आ गई. इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्लोज पॉइंट्स टू द मेटल प्लेट E. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली कंडक्टर शीट E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, where sigma is the surface charge density. Surface charge density sigma का फॉर्मूला चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया. सिग्मा इक्वल टू Q बाई 2A. अब 2A क्यों आ गया? एरिया डबल क्यों आ गया? बिकॉज charge is uniformly distribute on both sides of metal plate. Both sides of metal plate. ओके, E की कैलकुलेशन अपन यहां करेंगे. E इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू Q बाई 2A. E इक्वल टू
Q/2A एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻5 और वैल्यू क्या है एक बार फिर से पुट कर सकते हैं अपन। Q/2A 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 4πk। 1/एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल 4πk, बिकॉज सिंस k इक्वल टू 1/4πε0 ये होता है। तो 4π यहां ले आए, 4πk इक्वल टू 1/ε0। तो 1/ε0 के स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं आप, 4πk पुट कर सकते हैं। E इक्वल टू Q की वैल्यू आप पुट करो 1 इंटू 10⁻⁻5 4 पाई की वैल्यू 3.14, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 2, A की वैल्यू 10⁻², 10⁻², ये आ गया 10⁻² आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 9 से मल्टीप्लाई करते ही 18 आ गया। 18 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा 72, 2 आ गया। 18 1 जा 18 और 18 और 7 25, 5 आ गया, 2 हो गए। 18 3 जा 54, 54 प्लस 2 56, ये 56 आ गया। E इक्वल टू, और डेसिमल कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स, 56.52 इंटू 10⁻⁹ तो ये 9 है, नीचे वाली -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 9 + 2 11, 11 में से 5 चले जाएंगे, 10⁻6। एक डेसिमल इस साइड लेफ्ट साइड आप डिस्प्लेस करेंगे तो पॉजिटिव पावर इंक्रीज हो जाएगी और 5.652 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। ओके।